Yes, very warm good morning children. In the last lecture we have just learned about the distribution of electron for the element sodium till the element calcium. So we will take the look on the particular distribution of electron what we have learned in the last lecture, and then we will move to the next particular topic, that is known as valency. So here children, when we talk about the recalculation is nothing but what you have learned. We are going to recalculate value. सीरियल देखते हैं हम लोग को पता है what you have till now and for tomorrow. ठीक है, इसी तरह हम सबसे पहले देखेंगे सोडियम. नाउ सिंबल क्या है सोडियम का? Na. How many electrons are there? So we are writing 11. So the electrons are distributed. So 2 in the cation, 8 in alcyl and in amcyl. That is about sodium. Now magnesium, सिंबल है फर्स्ट एंड थर्ड प्रोमिनेंट लेवल Mg. उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12. तो यहाँ पे केशल, एल्सल, एमसेल और एमसेल में कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2, 8, 2. अगर स्कीमेटिक डायग्राम मुझे पूछ लिया तो मैं क्या करूँगी? दिस इज द न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस में क्या चाहिए? प्रोटॉन्स हो 12 प्रोटॉन. अब न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? बाय द यूजिंग ऑफ मास नंबर. अब मैग्नीशियम का मास नंबर क्या हुआ? मास नंबर इज डिनोटेड बाय A, which is equal to 24 gram, and it is universally accepted. We cannot change their masses. So 24 minus number of proton 12, so we have 12 proton. Now around the nucleus we have 3 cells: K-cell, L-cell and M-cell. So now we are just adding the electron by the use of dot 1, 2. That is K-shell. This is nucleus. You can label as a nucleus. Now L-cell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So that is L-cell. And third is M-cell. So how many electrons? 1 and 2. So that is for magnesium, that what we have learned. So this is the particular one. So after magnesium अगर हम लिख रहे हैं तो मैग्नीशियम के बाद आएगा अपना एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का सिंबल हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट 2 लेटर्स Al, that is the symbol of aluminium. कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1, 3, 13, so 2, 8, 3. So what is the mass number of aluminium? 27 minus 13. तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 14. सो हम क्या करेंगे? 14 न्यूट्रॉन, 13 प्रोटॉन. सो 1, 2 and extra I have added this. So that is about what? Aluminium. Then silicon. Silicon is also having first 2 letter as a symbol. उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 14. So 2, 8, 4 and has no electron. So here silicon is having the mass that is equal to 28 minus 14 proton. So again it is containing 14 neutron but 14 proton. So 1, 2 and 3 M-cell now having 4 electron. ठीक है. After silicon we have phosphorus, so it has 15 electrons. So we have the electronic configuration that is 2, 8, 5. अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 15. फॉस्फोरस उसका सिंबल है कैपिटल P, ओनली फर्स्ट लेटर. उसका मास नंबर है 31 minus 15, तो उसके पास हो गए 16 न्यूट्रॉन चिल्ड्रन. So 16 neutron with 15 proton, that is the nucleus. Now we have 1, 2, 3, 4. So in M-cell we have to add 1 more, so that is 2, 8, 5. It is about the electronic configuration of phosphorus. Now after phosphorus we have sulfur children. सल्फर का सिंबल हो गया कैपिटल एस,
16. That means 2, 8. Instead of 5, now we are adding one more electron, 6 over here. But when we are talking about the neutron, जैसे न्यूट्रॉन डालेंगे, so 16 प्रोटॉन्स का मास है 32 और नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 16, so 16 न्यूट्रॉन. तो ये हो गया एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन फॉर सल्फर. नाउ 17 इज क्लोरीन. सो व्हाट वी आर डूइंग इज 17 है उसका एटॉमिक नंबर आप बोल दो या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दो. सो एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z is equal to electrons. So here we have 2 in cell. Now the mass of the chlorine is 35 minus 17, so 18. So we have 18 neutron and 17 proton. Now we have 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So it is about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You can see over here. That is for chlorine. Lastly, about the argon, and we are moving to the valency children. आर्गन का सिंबल क्या होगा? कैपिटल A एंड स्मॉल r. Z that means उसका एटॉमिक नंबर हो गया 18. अब यहाँ पे है 2, 8, 8. उसकी तीन शेल फुलफिल्ड है. फुलफिल्ड है that means कि ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो वो इलेक्ट्रॉन देगा. सारे एलिमेंट्स या तो आर्गन या तो हीलियम जैसे बनेंगे बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट इज द वैलेंसी? Valency is nothing but it is the number of electrons which are gained or lost by the last cell. Last cell that is known as valence cell. Last cell is known as valence cell, and the electrons in the valence cell or last cell are known as valence electron, which helps us to find out the valency. Valence cell helps us to find out the valency. So इसका मास हो गया 38 minus 18, so it has 20 neutron. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 neutron and 18 proton. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and this is the 8th one. So this is the electronic distribution, electron distribution of electron in argon. अब आर्गन से हम पहले से सीखेंगे हर एक एलिमेंट कहीं ना कहीं आर्गन या तो हीलियम जैसा बनेगा. उसके लास्ट सेल में से या तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा या तो उस लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन लेगा. It is either going to lose or either going to gain the electron only from the very last cell. और लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल को हम बोलेंगे वैलेंस सेल, which helps us out to find out the valency. That means what? अगर मेरे पास सोडियम है, हम बात करेंगे 3 पर्टिकुलर नोबल गैसेस की. हर एक पर्टिकुलर गैस नोबल गैसेस जैसा बनना चाहेगा चिल्ड्रन. सबसे पहला हीलियम, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी के शेल में. उसके बाद आ गया नियॉन. नियॉन के पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 and 8. दैट मीन्स के शेल में और एल शेल उसकी फुलफिल्ड है. वो भी कोई इलेक्ट्रॉन लेगा या तो देगा नहीं. दे आर नॉट गोइंग टू शेयर लॉस और गेन द इलेक्ट्रॉन. उसी तरह मेरे पास लास्टली है आर्गन. आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है. दैट मीन्स उसकी के L और M तीन शेल दे आर फुलफिल्ड विद द पर्टिकुलर सेटिस्फाइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसमें कहीं ना कहीं कोई इलेक्ट्रॉन की कमी है नहीं लास्ट सेल में. उसकी लास्ट सेल फुलफिल्ड है. तो अब ये जो लास्ट सेल फुलफिल्ड है वो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैसे इलेक्ट्रॉन के जैसा बनना चाहिए. वैसे इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा या तो लॉस करके वो ये तीन में से कोई भी एक जैसा बन जाए. सपोज मैं सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या करेगा? नाउ वी आर मूविंग टू द पर्टिकुलर टॉपिक वैलेंसी चिल्ड्रन. सो प्लीज काइंडली सी केयरफुली. वैलेंसी इज डिपेंड ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वैलेंसी के बारे में लिखूंगी मैं. दैट वैलेंसी इज नथिंग बट वी कैन से दैट इट इज बेस्ड ऑन द valence electron.
capacity of the electrons either lose or gain from the valence shell to fulfill the octet rule, ठीक है। तो ये आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, पर अभी हम वैलेंस के लिए लिखेंगे, इट इज बेस्ड ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द एलिमेंट gain or lost the electron from valence shell, or you can write in class। एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम। सोडियम के पास मुझे पता है कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ आई एम डूइंग देन K, now we are having 2 electrons in K shell, 18 L shell and 1 in L shell। So वो क्या करेगा, it is very easy to lose 1 electron from the last shell। So क्या करेगा, it lost 1 electron from last cell and become stable like neon। वो अब नियॉन जैसा बन गया, स्टेबल हो गया, अनस्टेबल से एक इलेक्ट्रॉन को उसने लॉस किया है। दैट्स व्हाई व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम, दैट इज Na+1। +1 इंडिकेट करता है कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, द वैलेंसी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम इज नोन एज वैलेंसी, ठीक है। कंबाइनिंग capacity of an atom which is known as valency। So it is based on the valence electron as well। Elements either gain or lost electrons from valence shell to become stable like helium, neon and argon। helium, neon और argon कैसे stable है, तो सारे elements उसमें से if the number of electron are less in valence shell then it is easily going to be lost। वो लास्ट सेल में से क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। और if the number of electron is more than 4 or 5 then they are gaining the electron because they are using less energy to gain। यहाँ पे अगर उसे 7 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करने हैं तो it will having a need of more energy rather than वो क्या करेगा, easily lose the electron without wasting any energy। so वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। जब भी लॉस करता है इलेक्ट्रॉन it will always becoming positive ion। तो अब सोडियम ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये Na+ बन गया है, उसे हम बोलेंगे सोडियम आयन। प्लस चार्ज है तो हम इसे बोलेंगे पॉजिटिव आयन और इट इज नोन एज कैटायन, ठीक है चिल्ड्रन। सो ये हमने पढ़ा है वैलेंसी के बारे में। दैट व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी इज नथिंग बट इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम विद द पर्टिकुलर other element। it is based on the valence electron। Elements, whatever the elements, they are gain or lost the electron based on the number of valence electron। अगर valence electron लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कम है, 1 2 3 4 है, तो इजीली वो क्या हो जाएगा, लॉस। दैट मीन्स जो लॉस हो रहा है वो जो एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा, कैटायन या तो पॉजिटिव आयन। whatever the electrons are there in the last cell, if they are lost from that particular valence cell, वो लास्ट सेल में से अगर इजीली लॉस हो रहे हैं then their particular element is becoming the positive ion by losing the electron। और अगर अब हम देखते हैं एनायन कौन बनेगा, तो यहाँ पे हम लेते हैं एक एग्जाम्पल ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 8। सो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा चिल्ड्रन, सो व्हेन वी आर राइटिंग द सेल्स 2 and 6 दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना इट्स रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो क्या करेगा, इधर लूजिंग इट गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और जब भी गेन करता है दैट मीन्स नाउ ऑक्सीजन हैज गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी वो गेन करेगा देन इट बिकम्स नेगेटिव आयन और एन आयन। सो यहाँ पे इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2। तो हम ऑक्सीजन आयन का सिंबल, ना ऑक्सीजन आयन अगर पूछा है तो अब हो जाएगा O।
हुए 8 और वो स्टेबल किसके जैसा हो गया, नियॉन जैसा, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द वैलेंसी. वैलेंसी इज नोन एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम. Either it is depend on the valence electron, either element lose or gain the electron. लॉस कर रहा है तो वो पॉजिटिव आयन बनेगा या तो कैटायन बनेगा, गेन कर रहा है तो वो नेगेटिव आयन बनेगा या तो एनायन बनेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर वी जस्ट फाइंड आउट द वैलेंसी फ्रॉम द फर्स्ट वन element hydrogen till the calcium. We are going to find out the valency which help you out in the chapter number 3. So this is the particular valency topic, valency, which we have done today. In the next lecture we are finding the valency from the very first element to the last element, that is from the hydrogen to calcium. Thank you children and have a nice day ahead. If you want to copy, then you can copy this particular things